ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اردو سے وابستہ خواہش مند ہمارے دفتر بھارتی ڈیجیٹل واقع غلام چوراہا نزد وشوا شانتی کالج 5 تا 7 بجے شام رابطہ کریں یا کال کریں 9553521111۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی۔ پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جھوٹی قسم قسم کھانے والے کے خیال میں سامان کو رائج کر دیتی ہے لیکن برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ فرمایا جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ ابن عیسیٰ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایسا کام کرے جو ہمارے طریقے کے خلاف ہو تو وہ مردود ہے۔ آغاز سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر۔ پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ انجام دی گئی سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی آخری رسومات۔ 30 دسمبر کو اسمبلی کا خصوصی اجلاس آن جہانی سابق وزیر اعظم کو پیش کی جائیں گی خراج عقیدت۔ ضلع میں غیر قانونی اینٹ بھٹیوں کا کاروبار، قواعد و ضوابط کی کھلے عام خلاف ورزی، حکام کی خاموشی معنی خیز۔ بروز اتوار 29 دسمبر امپیریل گارڈن میں ڈسٹرکٹ ہج سوسائٹی کے زیر اہتمام خوش نصیب عازمین کے لیے پہلا تربیتی کیمپ، شرکت کی اپیل۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی آخری رسومات پورے سرکاری اعزازات کے ساتھ ادا کی گئی۔ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم، ممتاز ماہر اقتصادیات اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹر منموہن سنگھ کی آج آخری رسومات پورے سرکاری اعزازات کے ساتھ ادا کی گئی۔ ہفتے کی سپہر دہلی کے نگم بودھ گھاٹ پر منموہن سنگھ کی آخری رسومات فوجی اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی۔ صدر دروپدی مرمو، نائب صدر جگدیپ دھنکر، وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزراء امت شاہ، جے پی نڈا، راج ناتھ سنگھ، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، کانگریس لیڈر ملک ارجن کھڑگے، سونیا گاندھی، راہل گاندھی، پرینکا گاندھی، دہلی کے ایل جی وی کے سکسینہ، تینوں افواج کے سربراہ اور غیر ملکی نمائندوں سمیت کئی رہنما نے آخری رسومات میں شرکت کی اور منموہن سنگھ کو ودا کیا۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے جمعرات کی رات دہلی کے ایمس میں آخری سانس لی تھی۔ وہ 92 سال کے تھے۔ انہوں نے 2004 سے 14 کے درمیان یو پی اے حکومت میں وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دی۔ 1991 میں منموہن سنگھ سابق وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ کی کابینہ میں وزیر خزانہ کے طور پر ملک میں اقتصادی اصلاحات کا آغاز کیا تھا۔ دسمبر 30 کو تلنگانہ اسمبلی کا خصوصی اجلاس میں سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی موت پر خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ تلنگانہ اسمبلی کا اجلاس 30 دسمبر کو صبح 10 بجے منعقد ہوگا۔ اس اجلاس میں سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی موت پر خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ اسمبلی سیکریٹری نے اس سلسلے میں تمام ارکان اسمبلی کو اطلاع دی۔ یہ اجلاس بطور خاص تعزیتی امور کے لیے منعقد کیا جائے تاکہ آن جہانی وزیر اعظم کو یاد کرتے ہوئے ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کی جا سکے۔ باپو جی وچنالیہ شہر کی قدیم ترین لائبریری
कुतुब खाना, यहाँ से अवाम ख़ारीन के इस्तिफ़ादे के लिए हर मुमकिन सहूलत व तरक्की देने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। लाइब्रेरी सदर का बयान। सदर भक्ता वित्तसलम ने हाल ही में वचनालयम इंतखाबात के पेश नज़र तश्कील दी गई हुक्मरान जमात के जरिए नौ तामीर शुदा बापूजी वचनालयम इमारत में मुनाकिदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि निज़ामाबाद शहर में बापूजी वचनालय एक जदीद इमारत है जिसे आज़ादी पसंदों ने 6 दहाई क़ब्ल ख़ारीन के लिए बनाया था। उन्होंने कहा कि वो इस लाइब्रेरी की तरक्की के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं और कहा कि कुछ लोग जो तरक्की को देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे साजिशी इल्जामात लगा रहे हैं। भक्ता वित्तसलम ने वाज़ेह किया कि अगर लाइब्रेरी के तरक्याती कामों में कोई बदउनवानी हुई है तो वो फौरी तौर पर इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि मुकाबले जाती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा की सहूलत के लिए बापूजी वचनालयम को डिजिटल बनाने के इरादे से तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लागत से काम किया जा रहा है। बताया कि कहीं भी करप्शन के बगैर काम जारी है। MLC शब्बीर ने कहा कि लाइब्रेरी से मुतल्लिक किराया वसूली के जरिए हासिल होने वाली रकम के साथ साथ 25 लाख रुपए की मंजूरी दी गई और इससे काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि MP अरविंद ने 5 लाख रुपए देने का वादा किया और कहा कि वचनालय के पास 16 एकड़ पर मुश्तमिल अराजी है, वो बरसों से ज़ेर इल्तिवा वाजिबात की वसूली के मंसूबे के साथ आगे बढ़ेंगे। इस मीटिंग में गवर्निंग बॉडी के नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी M सुधाकर राव, ज्वाइंट सेक्रेटरीज AS सांबैया, दत्ताद्री, खजांची गंगाधर राव, गवर्निंग बॉडी के अरकान व दीगर भी मौजूद थे। ఇంకా ఎక్కువ చేస్తాడు గురదల రౌతే తీసుకున్నాడు అది మీరు ఎంతవరకు అయితే చూసి మీరు చేస్తున్న డెవలప్మెంట్ ఆ రోజు ఎలక్షన్ రోజు కూడా ఓటు వేసినాక మన ఓటర్స్ అందరినీ కూడా తీసుకొచ్చి చూపించడం జరిగింది చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి నేను చాలా వరకు కానీ ఇంకా నీచంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఎంత నీచంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఒక్క పైసా కూడా అలా నిజం లేదు మీరు అందరినీ లేరా ఇలా 10 ఎకరాలు వేస్తే ఇక్కడ పార్టీలకు సంబంధించిన నాయకులు లేరా ఇక్కడ 4 లక్షల మంది లేరా వాళ్ళకి ఎవరికి తెలియదా ఇక్కడ ఏం అమ్ముతున్నారు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ తెలియదు ఒక్కడే మీరు క్లెయిమ్ చేస్తే మీ ప్రెస్ వాళ్ళకు కూడా మరి వాస్తవం తెలుసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతోనే నేను ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ నాకు బాధ కలుగుతున్నది ఈరోజు ఎందుకంటే మొన్ననే ఎలక్ట్ అయినటువంటి మెంబర్స్ అందరం కూడా పైసలు సరిపోతలేవారంటే మేమందరం కూడా 50,000 రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది డొనేషన్ కొందరు ఫైనాన్స్ చేయడం జరిగింది దాస్ అన్నట్టుంటాడు 5 లక్షల రూపాయలు ఫైనాన్స్ ఇప్పించి ఆయన సొంతంగా 50,000 ఇచ్చి 1 లక్ష రూపాయలు ఆయన ఇంకో 1 లక్ష రూపాయలు కూడా మిస్టిల్ ఏం ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా అన్న అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఉన్న దత్తాశ్రాప్ అని ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఈయన 50,000 ఇచ్చిండు ఆయన 50,000 ఇచ్చిండు ఈయన ఇచ్చిండు ఈయన ఒక 5 లక్షలు తెప్పించిండు నేను ఒక అంటే వాస్తవం పైసా నేను చెప్తున్నా వాస్తవం దీని కంప్లీట్ స్లాబ్ కావాలంటే सिरकुंडा तहसीलदार रविंदर राव ने किया पेद्दावालकोट सरकारी स्कूल का अचानक दौरा, तलबा से उन्हें फ्राहम की जाने वाली ग़िज़ा पर मालूमात हासिल की। तलबा को मुतवाज़न ग़िज़ा की फ्राहमी के लिए स्कूल इंतज़ामिया को अहकामात जारी किए। तहसीलदार रविंदर राव, जिन्होंने सिरकुंडा मंडल में पेद्दावालकोट गवर्नमेंट हाई स्कूल का अचानक दौरा किया, उन्होंने तलबा से पूछा कि क्या वो मेनू के मुताबिक खा रहे या नहीं। उन्होंने स्टॉक रजिस्टर भी चेक किया। प्रिंसिपल को तलबा को तालीम के साथ मुतवाज़न खाना फ्राहम करने का मशवरा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल के अहाते और बैतुल खला की जगह को साफ रखा जाए और तलबा की सेहत को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जाएँ। इस मौके पर स्कूल असातिज़ा दीगर भी मौजूद थे। साल 2025 के खुशनसीब आज़मीन हज के लिए ज़िला निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम अज़ीमुश्शान पैमाने पर पहला 1 रोज़ा तरबियती कैंप बरोज़ इतवार बातारीख़ 29 दिसंबर बामुकाम इंपीरियल गार्डन डेयरी फार्म निज़ामाबाद पर मुनाक़िद होगा, जिसमें उलमा व अकाबरीन मनासिके हज पर मुकम्मल मालूमात प्रैक्टिकल तरीक़े और वाज़ के ज़रिए इनायत फरमाएंगे। तमामी आज़मीन से शिरकत की गुजारिश की जाती है। सुबह 10 बजे से तरबियती कैंप का आगाज़ होगा। ज़िला हज सोसाइटी सदर मौलाना आबिद कासमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़िला निज़ामाबाद और ज़िला कामारेड्डी के 2025 के आज़मीन और आज़िमात को हम मीडिया के ज़रिए से ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि कल 29 दिसंबर 2024 और इंपीरियल फंक्शन हॉल पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अज़ीमुश्शान पैमाने पर ज़िला निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम अज़ीमुश्शान पैमाने पर
ट्रेनिंग कैंप मुनाकिद किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी मुत्तहिदा जिला निज़ामाबाद और कामारेड्डी में हाजियों की खिदमत में एक मिसाली हैसियत रखती है। तकरीबन 25 साल के अरसे से निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी हाजियों की मिसाली खिदमत करते हुए आ रही है। तो उसी ज़िमन में 2025 में हज को जाने वाले अजीमुशान हुज्जाज किराम की खिदमत में और उनको मुकम्मल अमली तौर पर ट्रेनिंग देने के लिए ये ट्रेनिंग कैंप मुनाकिद किया गया है। और इस ट्रेनिंग कैंप में हमारी रियासत के बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं। खास तौर पर हजरत मौलाना मजहर कासमी साहब जो हज के स्पेशल ट्रेनर हैं वो भी तशरीफ लाएंगे। और सियासी कायदीन में आली जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब और निज़ामाबाद के भी तमाम सियासी कायदीन और तमाम उलमाए किराम रहेंगे। हम जिला निज़ामाबाद के आज़िमीन और आज़िमात हज से दरख्वास्त करते हैं वक्त मुकर्ररा पर तशरीफ लाकर इन उलमाए किराम के बयानात से इस्तेफादा फरमाएं। जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद के ज़ेरे एहतमाम इंटीग्रल हाई स्कूल निज़ामाबाद में जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व तक़सीम इनामात का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया। जमीयतुल उलमा जिला निज़ामाबाद के ज़ेरे एहतमाम इंटीग्रल हाई स्कूल निज़ामाबाद में जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व तक़सीम इनामात का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मौलाना सैयद समीउल्लाह कासमी सदर जमीयतुल उलमा जिला निज़ामाबाद ने कहा कि हजरत मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व हाफिज पीर खलीफ अहमद साबिर की ईमा पर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्विज़ शहर के मुख्तलिफ स्कूलों में करवाया गया, जिनमें काबिल जिक्र इंटीग्रल हाई स्कूल है। यहाँ के तलबा व तालिबात ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मेहनत करके इम्तिहान में पोजीशन हासिल की, जिनमें काबिल जिक्र तलबा व तालिबात जो अव्वल दुव्वम सुव्वम पोजीशन हासिल किए उन्हें इनामात व इस्नादात से नवाजा गया। अव्वल पोजीशन सैयदा इकरा रिम सैयद दाऊद, दुव्वम पोजीशन हुरिया अंबर बिनते ख्वाजा अब्दुल हफीज, सुव्वम पोजीशन रुमाइला खानम बिनते मोहम्मद यारो अली खान। इसी तरह जनाब यहया जफर की जानिब से प्रोग्राम हॉल में सीरत के तय कुछ सवालात किए गए, जिससे बच्चों में मजीद सीरत को इसका जज्बा पैदा किया जा सके और सही जवाबात देने वाले तलबा व तालिबात को तरगीबी इनाम के तौर पर हदिया पेश किया गया। मजीद जमीयतुल उलमा की जानिब से 10 तरगीबी इस्नादात भी तलबा को बतौर हिम्मत अफजाई दी गई। जनाब मुफ्ती महमूद अबुल हमूद साहब खासमी उस्ताद इदारा मजहरुल उलूम ने नसीहत करते हुए कहा कि इस दौर में मुस्लिम मैनेजमेंट के स्कूल और साथ साथ दीनी तालीम व तरबियत का होना जरूरी है। ताहम तलबा को नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से आगाह करवाना भी लाजिम है। इस मौके पर मौलाना सैयद समीउल्लाह कासमी सदर जमीयतुल उलमा जिला निज़ामाबाद ने स्कूल के बच्चों को नसीहत करते हुए कहा कि नमाजों की पाबंदी करें, अच्छे अखलाक को अपनाएं, वालिदैन की खूब खिदमत करें, असातिज़ा व मुतल्लिक़ीन के साथ हुस्न सुलूक से पेश आए। इस मौके पर सदर जमीयतुल उलमा व अराकीन जमीयत की जानिब से अब्दुल मलिक साकिब इंटीग्रल हाई स्कूल को मोमेंटो पेश करके शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी मुफ्ती महमूद अबुल हमूद साहब उस्ताद इदारा मजहरुल उलूम जनाब इनायत अली अफरोज खाजिन जमीयतुल उलमा, यहया जफर सदर इदारा बैतुल माल, मौलाना अब्दुल नासिर रुकन जमीयतुल उलमा, हाफिज अब्दुल वली मजहरी वो दीगर शामिल हैं। इस मौके पर अब्दुल मलिक शारिफ, अब्दुल मलिक साकिब, हाफिज शाहिद, हाफिज आमिर और तमाम स्कूल इंतजामिया ने आने वाले मेहमानों की शालकोशी करते हुए शुक्रिया अदा किया। यहाँ लेते एक वक्फा। खवातीन वो दो शिजाओं के फैशन का बाएतमाद वो भरोसेमंद नाम जमजम सूट्स। जमजम सूट्स रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर मरहबा सुपरमार्केट के पीछे नज़द बोधन बस स्टैंड खिला रोड निजामाबाद। आपकी ईद व तकारीब छोटे बड़े फंक्शन के लिए हमारे यहाँ खवातीन वो दो शिजाओं के दीदा ज़ेब मलबूसात जो आपकी पहली पसंद होगी और आपको जाज़िबे नजर बनाने वाला स्टॉक दस्तयाब है। जमजम सूट्स की खुसूसी स्पेशल ऑफर 5 दिसंबर ता 20 दिसंबर 1000 रुपये 4 पीस कॉटन ड्रेस, 1400 रुपये 3 पीस वर्क ड्रेस मटेरियल,
1800 रुपये 3 पीस हेवी वर्क ड्रेस मटेरियल, 2000 रुपये 2 पीस पाकिस्तानी फुल वर्क ड्रेस मटेरियल, 2800 रुपये 2 पीस फर्शी लहंगा, 3500 रुपये 2 पीस रशियन प्लाजो गरारा, 1300 रुपये 2 पीस बुर्का। ऑफर सिर्फ 5 ता 20 दिसंबर, तो जल्दी करें। जमजम सूट्स रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर नजद बोधन बस स्टैंड किला रोड निजामाबाद। फोन नंबर 7981116967 9390414785। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबालें। ईंट भट्टियों का कारोबार खवायद व जवाबित के खिलाफ चलाए जाने की शिकायत आम, बावजूद इसके मुतल्लिका हुक्काम इस पर कार्रवाई करने के बजाय खामोश है, जो कि मनाक़ैज़ है। ईंटों के भट्टों का कारोबार बगैर किसी परमिट के खवायद व जवाबित के खिलाफ वर्जी से जारी है। रुद्रपुर मंडल के सुलेमान नगर, रायपुर और कोंडापुर के देहातों में गैर कानूनी ईंटों के भट्टे हैं। दरख्तों को गैर कानूनी तौर पर काट कर ईंटों के भट्टों पर ले जाया जा रहा। रिहायशी इलाकों के 5 किलोमीटर के अंदर ईंटों के भट्टे कायम ना करने के क़वानीन के बावजूद ताजिर उन्हें रोंद रहे। मज़ीद ये कि ज़रूरी ज़मीनों में कारोबार चल रहे। शक है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करने वाले अफसरान इस पे मुलव्विस है, जैसे कि ईंटों का कारोबार बगैर इजाज़त के चल रहा। ईंटों के भट्टे चलाने के लिए ग्राम पंचायत से परमिट लेना ज़रूरी है। अवाम इन पर सरकारी ज़ाब्तों को नज़रअंदाज करके गैर कानूनी कारोबार करने का इल्ज़ाम लगा रहे। अब भी आला हुकाम से दरख्वास्त है कि वो फौरी तौर पर जवाब दें और ईंटों के भट्टों का गैर कानूनी कारोबार जारी रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हुकूमत ग्राम पंचायत वर्कर्स की तनख्वाह के बकायाजात फौरी तौर पर अदा करें और सफाई के इंतज़ाम में अहम किरदार अदा करने वाले कारकुनों के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। ग्राम पंचायत एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर JAC ने एहतजाज करते हुए किया मुतालिबा। रुद्रपुर मंडल मुस्तकर में तहसीलदार के दफ्तर के सामने ग्राम पंचायत कारकुनों ने ग्राम पंचायत एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर यूनियन JAC के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा करके ग्राम पंचायत कारकुनों को बकाया उजरत की अदायगी का मुतालबा किया। इस मौके पर JAC कायदीन ननी साहब ने कहा कि GO नंबर 60 के मुताबिक रियासती हुकूमत ग्राम पंचायत कारकुनों की तनख्वाह के बकायाजात फौरी अदा करें। इसी तरह उन्होंने मुतालबा किया कि ESI, PF, इंश्योरेंस और दीगर सहूलियात फराहम की जाए। इस प्रोग्राम में ग्राम पंचायत कारकुनों नरसिमलू, वहीद, साइलू, शंकर दीगर भी मौजूद थे। కమిటీ మేరకు 2 రోజుల పాటు 27, 28 2 రోజుల పాటు మండల కేంద్రాల్లోని మండల ఆఫీసుల ముందు ధర్నాలు చేసి నిరసన వ్యక్తం చేయాలని రాష్ట్ర కమిటీ ఇచ్చినటువంటి JAC పిలుపు మేరకు రుద్రూరు మండల కేంద్రంలో MPDO కార్యాలయం ఎదుట రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రామ పంచాయతీ ఉద్యోగ కార్మికుల బకాయి వేతనాలు చెల్లించాలని, గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులకు అందరికీ కూడా కనీస వేతనాలు అమలు చేయాలని, PF, ESI ప్రమాద బీమా సౌకర్యాలు కల్పించాలని, దీంతో పాటు గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులకు GO నంబర్ 60 ప్రకారం వేతనాలు ఇవ్వాలని, మల్టీపర్పస్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలని ఈ సమస్యల మీద ఈరోజు నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని మండల ఆఫీసుల ముందు నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతుంది. ప్రభుత్వం వెంటనే గ్రామ పంచాయతీ కార్మికుల మీద మాటలను గౌరవించి వాళ్ళు చేసేటువంటి పనులని గౌరవించి గుర్తించి వాళ్ళకి జీతాలు పెంచి GO నంబర్ 60 प्रकार वेतनाल चेल्लिंचा। कौमी शाहरा 44 पर 2 मोटरसाइकिलों में भयानक टक्कर। इस हादसे में 3 नौजवान हुए शदीद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। बालकुंडा के नेशनल हाईवे 44 पर भयानक सड़क हादसा, एक की हालत तशवीशनाक है, 2 अफराद जख्मी। तफसीलात के मुताबिक बालकुंडा के मज़ाफ़ाती इलाके में कौमी शाहरा 44 पर बालकुंडा से आरमूर जाने वाली 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई। जाए मौके पर पहुंची पुलिस ने जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ किया। हादसे में एक की हालत नाजुक है जबकि दोनों शदीद जख्मी है, जिनका ताल्लुक मामेडपल्ली गांव से है। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। पूरे सरकारी एजाज़ के साथ अंजाम दी गई साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात। 30 दिसंबर को असम्बली का खुसूसी इजलास आन जहानी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को
पेश की जाएंगी खिराज अकीदत। जिले में गैर कानूनी ईंट भट्टियों का कारोबार, कवायद व ज़वाबित की खुलेआम खिलाफ वर्जी, हुक्काम की खामोशी मानक़ैस। बरोज इतवार 29 दिसंबर इंपीरियल गार्डन में डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम खुशनसीब आज़मीन के लिए पहला तरबियती कैंप, शिरकत की अपील। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवाज़ टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़े गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111।